چار کھولیے بھی اور اس کو بھی آپ کو سمجھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب جو سبق آپ بلیک بورڈ میں ترتیباً جو سمجھا ہے نا، میں اسی ترتیب سے ان چیزوں کو میں کتاب سے مناسبت کروں گا. ذرا دھیان دیجیے، ہر چیز کو دھیان دیجیے. سب سے پہلے ہم نے کیا کیا؟ 4 حروف کو پڑھا. تو بالکل شروع میں دیکھیے لکھا ہے مفردات. یہ پہلی قسم ہے، یہ پہلی قسم ہے. پہلی قسم دیکھا ہونا، یہ پہلی قسم ہے. نیچے دیکھیے مفردات. الگ الگ حروف کو کہتے ہیں مفردات. الگ الگ حروف کو کہتے ہیں. الگ الگ حروف کو کیا کہتے ہیں؟ مفردات. کسے کہتے ہیں؟ چند بار اس کو مشق کریں گے، اس کے بعد ان کو بتائیں گے کہ آج ہم کتنے حروف سیکھے؟ 4. یہ دیکھیے پہلی لائن میں 4 حروف ہے، اور اس کے سب سے پہلا بولیے الف. جلدی بولیے، چونکہ اس کو جلدی پڑھنا ہے نا. جلدی بولیے، اور جلدی بولیے، اور جلدی بولیے، اور جلدی بولیے. اس کے بعد کھینچ کر بولیے، اور کھینچ کر بولیے، سب مل کر بولیے. اس کے بعد کھینچ کر بولیے، اور کھینچ کر بولیے، سب مل کر بولیے. اس کے بعد کھینچ کر بولیے، سب مل کر بولیے. ان 4 حروف کو مشق کرانے کے بعد یہاں آپ کو 2 بات کرنے ہیں. نمبر 1، پہلی لائن جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، ہرا اور لام، یہ مکمل صورت ہے. اور یہ دوسری لائن جو دیکھ رہے ہیں وہ اصل صورت، جو تو میں نے سائڈ میں لکھ رکھا ہے. یہ پہلے لائن کے رائٹ سائڈ میں یہ ہے مکمل صورت، اور دوسری لائن کے آخر میں یہ ہے اصلی صورت. ایک بات آپ کو وہ بتانا ہے. دوسری بات آپ کو کیا بتانا ہے کہ الف کا ترجمہ یہ بالغان کی بات کر رہا ہوں. الف کا ترجمہ میم کا ترجمہ آپ نہیں بولیں گے، وہ بولے گا م، یعنی آپ اس وقت بولیں گے. لام کا ترجمہ ل، کاف کا ترجمہ ک. 2 بات ہو گئے نا. تیسری بات عربی زبان کا سب سے پہلا حرف نیچے 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 نیچے، ادھر دیکھو. سب سے پہلا اکشر نیچے نیچے کیا ہے؟ الف. اور اس کے ساتھ اور ایک حرف، وہ کون ہے؟ حمزہ. الف اور حمزہ کو جلدی پڑھیں گے. الف اور حمزہ کو جلدی پڑھیں گے. اور آگے اوپر دیکھیے میم لام کاف، ان تینوں کو 3 الف کھینچ کر پڑھیں. اور نیچے دیکھیے یا، اس کو 1 الف کھینچ کر پڑھیں. قاعدہ الف اور حمزہ کو جلدی پڑھیں گے. میم لام اور کاف لکھنے کے لیے چونکہ 1 سے زائد گجراتی میں حرف کی ضرورت، اس لیے اس کو 3 کھینچیں گے. اور یا لکھنے کو 1، اس لیے اس کو 1 الف کھینچیں. بات ختم ہو گئی نا. میں جو کچھ بتایا بورڈ میں وہ ساری بات ترتیباً آنا چاہیے. اس کے بعد نیچے مرکبات. ملے ہوئے حروف کو کہتے ہیں مرکبات. ملے ہوئے حروف کو کہتے ہیں. ملے ہوئے حروف کو کیا کہتے ہیں؟ مرکبات. کسے کہتے ہیں؟ ایک چند بات مشق کریں گے. پھر اس کے بعد نیچے جو 2 لائن ہے نا، یہ 2 لائن کو آپ انہی کے آپ نہیں پڑھیں، انہی کے ذریعے. 2 لائن میں سے پہلی لائن کا پہلا خانہ میم الف. پھر بولیے. یہاں ایک طریقہ میں آپ کو بتا دوں جو میں نے آپ کو ترتیب سمجھے. الف کو تو جلدی پڑھنا، اور میم کو کتنا؟ تو اس کو بولنا کیسے چاہیے؟ میم الف ہے نا؟ غلط ہے.
इस तरह पढ़ेंगे तो बच्चे आला नहीं होंगे। जब मुरक्कबात को पढ़ाएंगे तो सारे हुरूफ दो में तकसीम, एक अलिफ और जद, सारे को एक अलिफ, मीम अलिफ, बस मीम अलिफ। नहीं, मेरी बात को नहीं समझे? और अगर आप उनको मौका देंगे ना, मीम, वो खींच नहीं रहा है, वो देख रहा है कि उसके बाद कौन है। हाँ, ये तरीका बच चुका है, वो मीम को नहीं खींच रहा है, वो उसके बाद क्या है वो सोच रहा है, और वो खींच रहा है, इसका तो खबर नहीं और आगे का पता नहीं। इसलिए इधर ज्यादा नहीं खींचना, सिर्फ एक अलिफ, मीम अलिफ, मीम अलिफ, उसके बाद लाम अलिफ, जल्दी करना, लाम अलिफ, लाम अलिफ, उसके बाद लाम अलिफ, लाम अलिफ, उसके बाद ये भी लाम अलिफ, और आखिर में काफ अलिफ। ये जो तीन है ना, ये तीनों लाम अलिफ है, ये तीनों लाम अलिफ है, ये तीनों लाम अलिफ की शक्ल है, फर्क समझेंगे, ठीक है ना। अब दूसरी लाइन देखिए, दूसरी लाइन शुरू में लाम अलिफ, लाम अलिफ, काफ अलिफ, काफ अलिफ, आगे लाम अलिफ, लाम अलिफ, आगे आगे, इस तरीके से ये दो लाइन को खूब मश्क करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे याद करेंगे, हरकत, एक ज़बर, एक ज़ेर, एक पेश को कहते हैं, हरकत, एक ज़बर, एक ज़ेर, एक पेश को कहते हैं। फिर उनसे पूछेंगे हरकत को कैसे पढ़ेंगे, पूरी बात, हरकत को जल्दी पढ़ेंगे, आप बोलेंगे नहीं, आप पूछेंगे हरकत को कैसे पढ़ेंगे, बात हो गई ना। उसके बाद जबर की आवाज ऊपर को जाती है, जबर कहाँ, तो जबर की आवाज ऊपर को जाती है, जेर कहाँ, तो जेर की आवाज नीचे को जाती है, और पेश कहाँ, आगे, पेश कहाँ, और पेश की आवाज किधर जाती पता, घर के तरफ, किधर, घर की तरफ, घर किधर, आगे, नहीं बात मेरी समझ में आती। अरे पेश की आवाज किधर जाती है, हाँ घर की तरफ, और घर किधर, नहीं बात मेरी समझे क्या, पेश की आवाज, अरे नहीं घर की तरफ, और घर किधर है, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, पेश की आवाज किधर, अरे घर की तरफ जाती है। अब पेश घर की तरफ क्यों जाती है वो मुझे पता नहीं, वो आप जाने, आइए बस समझ में। एक बात, दूसरी बात देखिए, मैंने लिखा जिस अलिफ के साथ जबर, जेर, पेश, जज़म हो उसे हमज़ा कहते हैं। और आखिरी बात, आखिरी बात, अलिफ हमेशा खाली होता है, एक मिनट, अलिफ हमेशा खाली होता है, वो बात यहाँ नहीं है, इसमें है, ये मिल जाएगा, अलिफ हमेशा खाली होता है। ये सारी चीज मैंने आपको पढ़ाई ना, आगे चले, आगे चले। अब उसके बाद वाले लाइन को जरा समझ लीजिए, उनको पहले समझाएंगे। ऊपर हम समझ चुके अलिफ का तर्जमा, मीम का तर्जमा, लाम का तर्जमा, काफ का तर्जमा, यहाँ समझाएंगे जबर का तर्जमा भी, जेर का तर्जमा, पेश का तर्जमा। अगर बात ऐसी है तो फिर हमें बताइए सबसे पहला हरफ, अच्छा इस पर जबर नहीं, इधर जबर है, सबसे पहला हरफ क्या है, बोलिए हमजा, क्योंकि जबर है, क्या है, तो हमजा का तर्जमा अ, जबर का तर्जमा भी अ, दोनों मिलाकर अ, हमजा जबर अ, फिर बोलिए हमजा जबर, आप खूब मश्क करेंगे, ये नई चीज है, फिर बोलिए हमजा जबर, फिर बोलिए हमजा जबर। उसके बाद वाला हरफ क्या है, मीम का तर्जमा म, जबर का तर्जमा अ, मीम जबर म, फिर बोलिए
जरा ऊंची आवाज से मीम ज़बर मा सब मिलकर बोलिए मीम ज़बर मा इसको खूब मश्क करेंगे उसके बाद लाम लाम का तर्जमा ला जेर का तर्जमा इ लाम जेर ली लाम ज़ेर ली मैं यहाँ लिख के बताया था ना जी वही लाम जेर ली लाम ज़ेर ली फिर बोलिए लाम ज़ेर ली उसके बाद काफ काफ का तर्जमा का ऊपर उ पेश 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 का तर्जमा उ काफ पेश कु काफ पेश कु फिर बोलिए काफ पेश कु उसके बाद काफ मीम मीम का तर्जमा मा जेर का तर्जमा इ मीम जेर मी मीम ज़ेर मी फिर बोलिए मीम ज़ेर मी उसके बाद लाम लाम का तर्जमा ला ऊपर पेश पेश का तर्जमा उ लाम पेश लू लाम पेश लू फिर बोलिए लाम पेश लू उसके बाद काफ काफ के ऊपर काफ जबर का काफ ज़बर का फिर बोलिए काफ ज़बर का इस लाइन को खूब मश्क करेंगे उसके बाद कुरान शुरू करेंगे देखिए सबसे पहला हरफ क्या है अलिफ उसके बाद लाम उसके बाद मीम एक साथ अलिफ लाम मीम अलिफ लाम मीम अलिफ लाम मीम आज हम पहले दिन क्लास में आए ना जी और आज ही हम कुरान पढ़ रहे हैं ना जी क्या कुरान पढ़ना मुश्किल या आसान आसान ऐसा नहीं बोलना आसान या मुश्किल तो वो बोलो हाँ वो फितरत में है वो होश में नहीं होते जो आखिर बोलेंगे उसी को धब्बा लगा देते ये ले। क्या बोलेंगे मुश्किल या आसान पूछेंगे क्यों अल्लाह ने फरमाया वाला खद यस्सरनल कुरान अल्लाह ने कुरान को आसान फरमाया फिर होना चाहिए कौन तलब वाले फहल में मुद्दकिर है कोई तलब वाला उनके लिए आसान बेतलब के लिए नहीं कल क्लास में आएंगे कुरान सीखेंगे मेहनत करेंगे सबको दावत देंगे ये तश्कील करना है तो दूसरे दिन 20 लोग आ जाएंगे इंशाअल्लाह आई बस समझ में उसके बाद के जितने हुरूफ है ना ये जो 4 इनको हम इजरा के साथ पढ़ेंगे अब इजरा क्या होता है इजरा वो कवायद को जारी करना उसी का नाम इजरा है इसको पढ़ाने का तरीका देखिए उसके बाद अलिफ लाम मीम के बाद देखिए अब इस तरह पढ़ेंगे पहला हरफ क्या है मीम के ऊपर जबर को जल्दी पढ़ेंगे जबर को मीम जबर मा मीम ज़बर मा धक्का नहीं मा मा यूं गुजरना मा ये देखिए उंगली लाकर गुजरना मा 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 मीम जबर मा मीम ज़बर मा फिर बोलिए मीम ज़बर मा फिर बोलिए मीम ज़बर मा कई बार उसके बाद भी मीम के नीचे जेर को जल्दी पढ़े मीम जेर मी मीम ज़ेर मी फिर बोलिए मीम ज़ेर मी फिर बोलिए मीम ज़ेर मी एक 5-6 बार उसके बाद भी मीम के ऊपर पेश को जल्दी पढ़े मीम पेश मु मीम पेश मु फिर बोलिए मीम पेश मु फिर बोलिए मीम पेश मु ये हमने क्या किया इजरा इजरा अब हम उसको रवा पढ़ाएंगे तरीका पहला तलफ़ुज़ कीजिए मा मा दूसरा मीम तीसरा मु मेरे हाथ की तरफ देख रहे इधर देखिए पहला मा आवाज़ किधर ऊपर दूसरा मीम आवाज़ किधर नीचे तीसरा मु पहला मा दूसरा मीम तीसरा मु पहला मा दूसरा मीम तीसरा मु एक साथ मा मीम बीमू मा मीम एक साथ मा मीम आगे देखिए ला ली लो आगे देखिए काके को आगे देखिए मीम जबर मा मीम ज़बर मा ये मैंने शॉर्ट खींचा क्योंकि ये सर पे खड़ी है ना घड़ी इसलिए मैंने शॉर्ट कर दिया मैंने एक मिसाल दे दी बाकी तो उसी तरह इजरा करेंगे मीम के ऊपर जबर को जल्दी पढ़े मीम जबर मा मीम ज़बर मा फिर बोलिए मीम ज़बर मा ये बिल्कुल उनके लिए नई चीज है बार बार बोलेंगे तो उस जबान में ये बात चढ़ जाएगी
फिर बोलिए मीम जबर मा उसके बाद लाम के नीचे जेर को जल्दी पढ़। लाम जेर ली लाम जेली फिर बोलिए लाम जेली उसके बाद काफ के ऊपर पेश को काफ पेश कू काफेशकु फिर बोलिए काफेशकु अब पहला तलफ़ुज़ कीजिए मा मा दूसरा ली तीसरा कु पहला मा दूसरा ली तीसरा कु एक साथ मालिकु एक साथ मालिकु 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 मालिकु। बस ये जो मैंने कुरान का एक टुकड़ा पढ़ा दिया, इस तरीके से आपको बोर्ड में पढ़ाना और इस तरीके से आपको इस सफ़ा को समझाना, फिर आपको होमवर्क देना। वो क्या है, सबसे पहली जो लाइन है अलिफ मिम लाम का, आपको उसको 10 बार लिखना पढ़ने के साथ साथ। उसके बाद मुरक्कबात में जो 2 लाइन है ना, उसको भी 10 बार लिखना। उसके बाद ये जो पहली लाइन जो मुफरदात में हरकत है ना, इनको अपनी ज़बान में तलफ़ुज़ करना। मीम ज़बर नीचे लिखेंगे म, मीम ज़ेर नीचे लिखेंगे म ई मी, तर्जमा के साथ आपकी ज़बान में। और नीचे वाली जो लाइन है ना, उस लाइन को भी पढ़ेंगे और उसको अपनी ज़बान में नीचे लिखेंगे म मे मो ला ले लो के को मा लिखो। आई बस समझ में, आई बस समझ में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।